Assalamu alaikum, dear students. In previous discussion, we were talking about the excretory products. So, excretory products in plants. We have discussed that excretion, it is the removal of metabolic wastes from the organisms or nitrogenous substances or unwanted chemicals from the body of an organism. We have discussed certain excretory products inside the from the plant's body, and those were the carbon dioxide, oxygen, and water. These were certain excretory products we have discussed. Though we have discussed that there is not well developed excretory system in plants as in animals, but however we have discussed about certain gases as well as water as an excretory product which is released out from the plants through different processes. So furthermore, beside those gases, there are the other certain metabolic uh, organic substances or organic products which are released from the plant's body from different parts. Though we also have discussed कि मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं होता जैसा कि एनिमल्स में होता है, लेकिन however there is a metabolism, and these metabolic wastes or metabolic organic products are produced during this process in the plant's body. और वो कौन से होते हैं? See, gums, oils, latex, resins, tannins. So these are the few substances which are released from the plant's body as an excretory products. Make sure that these excretory products which I have discussed now, these means gums, oils, latex, resins, tannins, usually they stored inside the barks, stems, and leaves. Why they stored there? Because the aging cells are present in these parts. Aging cells mean those cells which are uh, uh, going to be destroyed after a few time. तो वहां पर वो स्टोर होते हैं, एंड आफ्टर ऑल क्योंकि वही पार्ट्स जो हैं प्लांट्स शेड ऑफ कर देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं प्लांट्स बॉडी से. सो these organic substances is a waste product removed out from the bodies from these different parts of the plants. So because our topic is related as excretory products of the plant's body, so these excretory products, how they stored inside it and removed. So first of all, gums and resins. Gums and resins, these are the natural substances that actually excrete are released out or ooze out from trees as a response to injury, are wound and collected by tapping or picking or cutting the trees. क्योंकि ये substances collect भी किए जाते हैं, इनका commercial values भी इनकी है. So the hardened shape is generally referred to as a gum or resin. Shape actually it is a fluid found inside the xylem and phloem which moves inside these tissues. So gums and resins, these are found in plants as an excretory product and released from the injured parts or where the wounds or injury is taken place in the plant's body, they release from that place. Resins are formed as an, how resins form?
through oxidation process. You have learned in chemistry oxidation and reduction process, जिसको हम redox reactions भी कहते हैं. So resins are formed as an oxidation byproduct of essential oils and expelled out of trees bark, यानी trees के bark से ये release हो जाते हैं, and then hardened with exposure to air. जब ये plants के bark से बाहर निकलते हैं and they get in touch with the air, then obviously they become hard. ये जो resin है ये सख्त हो जाती है because of exposure of air or because of addition of oxygen, तो ये सख्त हो जाती है. After all, रेजिन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो रेजिन क्या है बेटा? रेजिन एक्चुअली इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic solvent. It is soluble in organic solvent. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है जैसा कि अल्कोहल वगैरह उसमें soluble है, वाटर में insoluble है. It is used in industries to make glues, waterproof varnishes. Even ये जब प्लांट्स की बॉडी से बाहर निकलते हैं तो भी एज अ वाटरप्रूफ कवर का काम करते हैं और प्लांट को जो है वो एक्स्ट्रा वाटर खारिज होने से बचाते हैं. So waterproof varnishes and in aromatic products. Aromatic products are aromatic medicinal process. It means though resin actually it is insoluble in water but soluble in solvents, and in industry it is used in for wide purposes. क्योंकि waterproof varnishes, you know what do you mean by varnishes? ये मैकेनिकल फील्ड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादातर ये मोटर वगैरह जो होते हैं इनके अंदर वायरिंग हुई होती है, फिजिक्स से आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो इन वायर्स को एक और ग्लू जो है वो लगाते हैं जिसको हम वार्निश कहते हैं. तो वो वार्निश क्यों लगाते हैं? ताकि वो जो बाहर एक हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन है, यानी बाहर वाटर वेपर्स जो है एनवायरनमेंट में वो वहाँ अंदर न दाखिल हो, और इनको जो है वाटर प्रूफ करते हैं ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो. एंड इन एरोमेटिक मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेडिसिन को भी कुछ फ्लेवर चाहिए होता है. देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन and these different type of the medicines needs flavor as well. हर एक को जो है वो फ्लेवर होता है. तो for this purpose they add the resin into the certain medicines. Okay, so उसके बाद है बेटा, there are the few groups of the resins, यानी resins के भी कुछ सब टाइप्स है, और वो है hard resins, oleoresins and gum resins. These are also subtypes of the resins. Okay, resin found in the resin ducts of the tree's bark. Bark, you know where the bark is present? Bark is present at the major stem of the plant. जो एजिंग सेल होते हैं और बार्क हार्ड हो जाता है और कुछ टाइम के बाद वो प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है.
और उसमें कुछ जो है वो इंजरीज आ जाती है नेचुरली, जो कि ये शो करता है, और लेंटिसिल्स वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। ये शो करता है कि नाउ that part of the plant is going to be separate from its parental body. So resins found in the barks protects the trees from injury, water loss, microbial pathogens and insects. यानी अगर रेजिन्स उन बाग से बाहर आई हुई है पहले ही, तो वो उनको इससे बचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कोई भी डिजीज उन प्लांट्स को ना लगे। इस ओवरऑल वी कैन से दी रेजिन इज एंटीसेप्टिक। इट इज एंटीसेप्टिक and actually helpful for the plant's body to avoid from any disease, any fungal disease, or any bacterial or viral disease. So this is the gums and resins. You could see these figures on your screen कि ये जो है gums and resins है, और ये अमूमन हमने भी बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा, जैसे अकाशिया वगैरह है और यूकेलिप्टस है। तो कुछ प्लांट्स के हम स्टेम में देख रहे होते हैं कि ये चीज़ें पाई जाती हैं। और लोकली भी जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जो जंगल्स वगैरह में या फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको पता है कि एज ए स्टिक भी इसको यूज़ करते हैं, कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे जो है ग्रीक्स वगैरह, यूनान्स वगैरह में भी ये मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। और जैसे वैसे भी होम्योपैथिक और होम्योपैथिक में दोनों में ये इस्तेमाल होते हैं, और फ्लेवर देने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और लोकली भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली दे आर मोर फाउंड एट द ड्राई प्लेसेस, मीन्स जहाँ पर पानी कम है और वहाँ पर प्लांट्स हैं, तो उन प्लांट्स में ये ज़्यादा निकल रहे होते हैं बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। Furthermore, beta gums are made by the plants when the internal tissues are decomposed. Internal tissues जब break होते हैं, usually जब cellulose break होता है, तो उस वक्त क्या बन रहा होता है? As a result, the gums gum is produced. This process is called as gummosis. Gummosis creates a product high in sugar. इसका मतलब ये हुआ कि जो gums produce होते हैं because of decomposition of the tissues, usually the cellulose, and as a result the product is released which is called as a gum, and gum is enriched in sugar. ये sugar में enrich होती है, and this is the reason ये कैंडीज इंडस्ट्री में भी बिस्किट्स वगैरह बनाने में या वहां पर भी शुगर से ली जाती है। नंबर 2 पॉइंट, गम typically excrete or oozes from stems or branches response to warm। जबकि रेजिन्स की जब हमने बात की, तो रेजिन्स स्पेशली बाग से जो हार्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो है ब्रांचेस या फिर नॉर्मली स्टेम से भी खारिज होते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय द प्लांट टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। अगेन ये गम भी एंटीसेप्टिक हैं, दो इट पजेज द शुगर, बट फिर भी ये किस लिए काम करते हैं? एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट। ये एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। Gums are used primarily as adhesive, as stick. I have already told you कि adhesive purpose के लिए भी इस्तेमाल होती है, and are also used
इन प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग टेक्सटाइल्स, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल है और फिनिशिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ए साइजिंग ऑफ द पेपर्स, ये जो पेजेस पेपर्स वगैरह बनाते हैं इसमें भी इनका इस्तेमाल होता है। इन द पेंट्स, कलर वगैरह बनाने के लिए। एंड कैंडीज इंडस्ट्रीज एंड एज ड्रग्स, ड्रग्स बनाने के लिए यानी मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए, और जो स्वीट थिंग्स हैं वो बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है see, we have discussed the resin and gum. Another is gum resin. These are actually types. तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि उनकी डेफिनेशन क्या है, सॉल्युबल कहाँ पर हैं, अल्कोहल में है या वाटर में है, एग्जाम्पल्स उनके क्या हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने क्लियर लिखा है कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, रेजिन यूजुअली ओजेज आउट ऑफ द बाग, बाग से ये निकलते हैं, जबकि अगर गम की बात करें वो स्टेम से, और रेजिन, गम रेजिन क्या है? गम रेजिन अगेन it is a combination of gum and resin, that's why we call it as a gum resin. वाटर सॉल्युबल, अगर ये प्रॉपर्टी देखें रेजिन में तो ये नहीं है वाटर सॉल्युबल, गम्स वाटर सॉल्युबल है, गम वाटर सॉल्युबल है, जबकि गम रेजिन पार्शियली वाटर सॉल्युबल है, पार्शियली जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर हम बात करें अल्कोहल में, जो ऑर्गेनिक अल्कोहल को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं, रेजिन उसमें सॉल्युबल है, गम सॉल्युबल नहीं है, और गम रेजिन मोस्टली इसमें सॉल्युबल है। सो दीज आर द एग्जांपल्स आई हैव रिटन हियर कि कौन से प्लांट्स में होते हैं। यू कैन गूगल इट और यू कैन सी इट्स फर्दर डिस्क्रिप्शंस, देयर फिगर्स एंड देयर हैबिटेट की कहाँ पर होते हैं। ये कुछ प्लांट्स हैं जिससे ये जो है मुख्तलिफ ये स्ट्रक्चर्स जो हैं या ये प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं। I hope you have got it. If you have any question, you may ask. If not, then I should move ahead. Okay, beta. So these were the gums and resin. Make sure that we are talking about excretory products of the plants. And now we are talking about other excretory products, means other than gum, resin, carbon dioxide, water and oxygen, because these we have discussed. So beta, excretory products, the oil produces, अगर हम अब ऑयल की बात करें, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ऑरेंजेस, यूकलिप्टस, जेस्मीन, यहाँ से प्रोड्यूस होता है। लेटेक्स क्या है? लेटेक्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लेटेक्स द रबर ट्री, पपैया ट्री, पपीतो जैसे चौंदा है, and gums from acacia are different forms of the stored waste products which sometimes they ever excrete into the soil through roots. These type of excretory products are means excretion in aquatic plants takes place through diffusion. यानी aquatic plants जो पानी में रहते हैं उनमें भी excretion ये होती है और ये through diffusion होती है. So these are the other excretory products. So first let's discuss another, that is latex. So latex
लेटेक्स एक्चुअली क्या है, उसकी डेफिनेशन हम उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि लेटेक्स की अगर हम बात करें, इट इज एक्चुअली अ मिल्की वाइट फ्लूइड which consists of tiny droplets of organic matter suspended or dispersed in aqueous medium. aqueous solution, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारी सिरप्स वगैरह देखी होगी, जैसे पेनाडोल है, जो फीवर के लिए जी देते हैं, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज aqueous solution. तो ये aqueous मीडियम में होता है, ड्रॉपलेट्स आर फाउंड इनसाइड इट, वाइट इन कलर. The well-known example is rubber latex. ये भी latex का टाइप है और रबर प्लांट्स में पाया जाता है, in which the solid contents is over 50%. यानी अगर उस सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें सॉलिड कंटेंट जो ज़रात हैं, ट्रेसेस हैं सॉलिड्स के, वो तकरीबन 50% होते हैं, यानी ये थिक होता है. 50% ऑफ द वेट ऑफ द लेटेक्स, यानी अगर हमारे पास 1 kg और लेटेक्स है तो उसमें जो है हाफ kg जो है वो सॉलिड पार्टिकल होंगे, बाकी हाफ kg फ्लूइड्स होंगे. लेटेक्स प्रोड्यूस कहाँ पर होता है बेटा? लेटेक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स कॉल्ड लेक्टिफायर्स. तो ये क्या है लेक्टिफायर्स? दीज आर सेल्स. यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है ब्रैकेट में कि lactifier actually is a type of elongated secretory cells found in the leaves or stems of the plants, जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्या? लेटेक्स एंड रबर इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी ये भी मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट है और एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इस्तेमाल होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलिक प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या रिलीज होते हैं. सो आई होप कि यहाँ पर मैंने स्लाइड्स में आपको क्या बताया कि लेटेक्स एक तो वाइट फ्लूइड है और इसमें क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं और एक्वस मीडियम है सॉल्यूशन का, और ये लेक्टिफायर सेल्स में प्रोड्यूस होता है. और लेक्टिफायर सेल्स क्या है? सीक्रेटरी सेल्स है. कहाँ पर पाए जाते हैं? स्टेम में या फिर लीव्स में. और ये क्या है? ये it is produced as a latex and rubber is a secondary metabolite. You could see here okay, these are the rubber plants and this is the latex. latex जो है ये इसमें से ये ज्यादातर रबर की जो इलास्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं वो बनाने में इस्तेमाल हो रहा होता है. ये देखिए फ्लूइड और थिक फ्लूइड है और ये इन प्लांट से हम ले सकते होते हैं. फर्स्ट वी हैव टू मेक एन इंजर्ड अ प्लांट एंड देन वी कैन गेट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी. तो हम वहां से ले रहे होते हैं. उसके बाद अच्छा, so after all the latex there are other excretory products. We know that in plants there are the vascular tissues, a xylem, which is responsible to transport minerals and waters from the soil through roots to other parts of the plants. So, means even up to the leaves. The leaves utilize the number of minerals which they require, while the rest are eliminated. बाकी जो है वो खारिज कर देते हैं leaves. Plants eliminate excess salt and minerals in the form of crystals. जो इस्तेमाल में होते हैं वो इस्तेमाल कर देते हैं. जो एक्सेसिव साल्ट्स होते हैं, is in the form of the crystals such as sodium oxalate crystals, calcium carbonates, वो भी leaves के थ्रू
खारिज कर देते हैं. So these are the other crystal forms excretory products. Also, some of the plants also eliminate the ammonia product such as alkaloids. Alkaloids ये भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि प्लांट्स जो है वो खारिज कर देते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड एज द अमोनिया प्रोडक्ट्स. और एल्कलाइड्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, यानी ये प्लांट से बनते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स विच हैव प्रोनाउंसिएट फिजियोलॉजिकली एक्शंस ऑन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं या जो सिस्टम्स हैं उन पर ये असरअंदाज होते हैं. दे इंक्लूड मेनी ड्रग्स एज मॉर्फिन, क्विनिन एंड अदर पॉइजन्स. इनको हम कहते हैं एल्कोलाइड्स. द कॉमन टाइप ऑफ एल्कोलाइड्स दैट प्लांट्स प्रोड्यूस मॉर्फिन. आप लोगों को पता है ये ड्रग्स हैं कुछ, मॉर्फिन वगैरह जिसे हम कहते हैं क्विनिन. क्विनिन भी एक एल्कोलाइड्स है, ये भी प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं. और ज़्यादातर आपको पता है कि क्विनिन कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? कोयना जो प्लांट वहाँ से ली जाती है. और क्विनिन जो है दिस इज एंटी मलेरियल ड्रग which is used in treatment many human diseases. यानी alkaloids, plants also releases certain ammonia products as alkaloids, and these alkaloids may be used as drugs, may be used to unconscious the patient for medicinal purpose, and also as and drug as quinine. तो ये प्लांट्स की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेनिफिशियल है फॉर वी पीपल. इज वी हैव डिस्कस्ड कि प्लांट्स डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक सिस्टम दैट परफॉर्म्स एक्सक्रीशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यानी कंक्लूजन क्या निकला? जो हमने पूरा जो आज हमने ऐसे लो कंप्लीट किया कि उसका कंक्लूजन क्या निकला कि प्लांट्स में एक तो कोई ऐसा डेवलप्ड सिस्टम नहीं है. The different plant structures that eliminate different forms of wastes are leaves, stem, edging tissues, xylem, root, bark, fruits and flowers, which help excrete water in some plants. यानी ये कुछ पार्ट्स हैं प्लांट्स के जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन हो रही होती है. So that was all about our today's discussion or today's SLO or topic. If you have a question, you may ask.